Jai Hind student. In the last video, we had discussed about the structure of kidney, and we had focus. We have given the focus on the title, especially the structure inside part of the kidney, about the cortex region, about the medullary region, and especially what are the relationship between the cortex and medullary region. These all were discussed in detail, and also we had discussed how the blood vessels just send the blood inside the medullary region, and how the calyces collect every waste material and then send it to the major calyx, and then finally through the major calyx it comes out into the ureter, and thereafter it stocks the excretory material in the urinary bladder. सो दीज ऑल वेयर डिस्कस्ड, सभी बातें वहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरह से कैलिक्स और मेडुला रीजन जो किडनी का है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में जानकारी रखना जरूरी है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट द urine formation. Especially we will have the focus about the urine formation, and especially if we talk about the urine formation, then obviously it is the another title we can explain it on the title, that is called the functions of nephron. So this is most frequently asked questions of the examination, that is the functions of nephron. Now see, this is the unit of kidney, that is called the nephron. See, this nephron is so much complicated structure, but these complications can be become simplified if we go through part by part the structure. In the last video we have seen what is the role of this blood vessels. Actually this blood vessels is coming out from the external and taking all the blood, and those bloods are drained inside the kidney. So these are called the renal artery. Renal word is associated with that of the kidney, so we can call it as an artery. But which type of artery it is? It is the renal artery. Now see, this is blue colored blood vessels, that is after the complete processing, whatever the operations goes inside, we'll see it now. Then all the bloods comes in the blue colored vein, that is called renal vein, and send back it to the heart. So all these functions we will go simultaneously, and we will learn step by step. So first of all, see the structure. This is the structure, this is the first structure, the first part of the nephron, and this is called the Bowman's capsule. And see, this renal artery just sends the some that is called arteriole here inside it, and these arteriole turns into the blood capillaries, and ultimately these blood capillaries do not forms the vein directly, but it forms the peritubular capillary, that is also a part of arteriole. So these all are in red in color. So everywhere there is the red blood vessels are there. These blood vessels are meant for something, that is they play a very important or vital role during the process of these urine formation. चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन हमारा यहाँ पर तैयार हो रहा है, यूरिन कैसे बनता है. अब हम लोग देखेंगे स्पेशली इस एरिया को. तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन करने जा रहे हैं इस एरिया को. सबसे पहला पार्ट होगा यूरिन फॉर्मेशन का इस जगह से. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू रिकॉल ऑल दोज टॉट टॉपिक that was in the first video. We had seen this kidney bean shaped structure kidney, and inside the kidney we had especially focused on this calyx region and the medulla region. And when you just enlarge this calyx and medulla region, so here this picture is enlarged here. Now this picture is enlarged picture, and this picture is enlarged picture. And now what happens, this nephron here, you can see that blue colored nephron is there. This is the blue colored nephron, this is the blue colored nephron is there. Okay, now this blue colored nephron, you can see that few parts of the nephron is just in the that is cortex region, and the major part is shown here in this picture is inside the medullary region. These having certain meaning, and we will discuss why these types of placement of the nephron is inside the kidney is there.
Now just elaborate this blue colored nephron, and we will see the different names here. What is the name? This is the Bowman's capsule. We have already studied this cup like structure is the Bowman's capsule, and these are peritubular efferent arteriole turns into the peritubular capillaries, and this is the afferent arteriole. Afferent means ये जो ब्लड ला करके देते हैं इसको एफरेंट कहते हैं, और इफरेंट जो होगा जो ब्लड बाहर निकालते हैं, एक्चुअली बाहर पूरी तरह से नहीं जाते हैं बल्कि ये एक नेफ्रॉन के इर्द गिर्द चारों तरफ मुड़े हुए जाल के समान एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ओके, तो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज ये सभी स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर एक मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, काफ़ी कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर है, तो इसलिए कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स को हम लोग आज से कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर। प्रॉक्सिमल मतलब पहले वाला, कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर इसका मतलब है दूसरा वाला भी कॉन्व्यूलेटेड होगा। यस, दूसरे वाला भी कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड। ये लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन होगा, वहां पर भी आप इसको देख सकते हो। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे अगले डायग्राम से। जरा हम अगला डायग्राम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक अगला छोटा सा डायग्राम आप देखिए कि किस तरह से ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है। व्हेनेवर द एग्जामिनेशन you have to draw this diagram, you can draw this either my diagram, this I have drawn myself, and either this one, because only we want a simplified labeled structure. Okay, we don't want any complicated structures where we fail to study क्या क्या पार्ट है इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो Bowman's capsule, see this is a Bowman's capsule, and now this Bowman's capsule, the first part is proximal convoluted tubule। ये देखिए आपको proximal convoluted tubule दिखाना है, and thereafter this U-shaped structure दिखाना है, U-shaped आ रहा है। Now ultimately when the material, जो nephric filtrate है, nephric filtrate will go inside here in this manner, एंड मैक्सिमम पार्ट इज ऑलरेडी रीअब्सॉर्ब। जो इम्पोर्टेंट डाइट का पार्ट था वो रीअब्सॉर्ब हो गया, बट अगेन देयर आर सर्टेन केमिकल्स और सर्टेन मॉलिक्यूल्स आर देयर, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। तो देखिए इस जगह को जो हमने बनाया है, इस जगह को जो है, इस जगह को हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल भी क्या करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर देता है। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। क्यों होगा कि इसका एक प्रोसेस है, क्लास 11 में पढ़ोगे, एडीएच यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है यहाँ रोल प्ले करता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ पर कोई रोल नहीं प्ले करता है। एक्चुअली डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि कितना दिन भर में यूरिन पास करते होंगे, लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं। लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो हमारा बॉडी में बनता है, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, मालूम है कितना होता है, 160 से 180 लीटर पर डे। 160 से 180 लीटर, समझ रहे हो? वाटर का बॉटल देखो, 1 लीटर का वाटर का बॉटल को अगर हम बोलेंगे 160 लीटर ले करके आओ तो तुम्हारा घर पूरा भर जाएगा। तो सोचो कि इतना सारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारा नेफ्रॉन उसको कितना में बदल दे रहा है, 1 लीटर यानी 2 लीटर बॉटल में बदल दे रहा है। यानी 160 लीटर बॉटल तुम लेके आए, पानी पी, पूरा वो प्रोसेस किया, और उसमें वो मात्र 2 लीटर से 1.5 लीटर यूरिन बना करके शरीर से बाहर निकाला। सो समझ सकते हो कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो बहुत करवा दिया, लेकिन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में कलेक्टिंग डक्ट तक, यहाँ तक रीअब्जॉर्प्शन होता रहता है। देखिए कलेक्टिंग डक्ट में जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन, ये सारा कुछ रीअब्सॉर्ब होते चला जाता है। सो यू कैन से दैट कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस अपने आप में बहुत ही कीमती प्रोसेस है, जिसका अगर किडनी खराब होता है, कहने का मतलब यही खराब हो जाता है, नेफ्रॉन ही खराब हो जाता है। तो नेफ्रॉन खराब होने से क्या होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होते चला जाएगा, कहीं कहीं रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस रुक जाएगा, सारा मटेरियल जो है यूरिन से बाहर आते चला जाएगा। तो इस तरह से मेजरमेंट करके इंसान को देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, यूरिन का सैंपल लेके, ब्लड का सैंपल लेकर के, कि आखिर इसमें क्या क्या केमिकल्स हैं जो कि ब्लड में हैं, जो कि फिल्टर नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको किडनी का पेशेंट बोल के आगे निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद अगला प्रोसेस क्या है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। नाउ ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है कि ये देखिए, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हमने इसको बोला है, आपके सामने पहले से ही बोल रखा। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में कुछ चोर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज फ्यू मॉलिक्यूल्स दैट फेल टू फिल्टर हेयर।
जो खराब है, मतलब समझ लो कि ये चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए, इसमें अमोनिया है, सपोज दैट अमोनिया है ना, अमोनिया है, तो ये अमोनिया को क्या यहाँ रखना है? नहीं रखना है। अमोनिया है, हाइड्रोजन आयन है, ये सब चीज़ जो है यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में का मतलब है कि ये एक शुद्ध रास्ता है, दैट इज अ प्योर वे है कि जहाँ पर इसको ब्लड को वापस भेजना है, ब्लड में आ गया। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में आने का मतलब ही है कि दैट कम्स इनटू द ब्लड। सो इफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आर स्टिल डर्टी, तो उसको तो हमारा ब्लड गंदा हो जाएगा ना। तो अमोनिया जो गंदा केमिकल है, NH3 केमिकल है, इसको बाहर निकालना है। सो दैट इज कॉल्ड द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, दैट सॉरी ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो इसके चारों तरफ हैं, यहाँ देखिए इस डायग्राम में आप भूल गए होंगे तो यहाँ पर देख लो, ये देखिए ये रेड कलर के जो डायग्राम दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर, देखो यहाँ लिखा हुआ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में कुछ केमिकल्स बच के निकल गए, अमोनिया बच के निकल गया, अदर हार्मफुल केमिकल्स अगर बच के निकल गया हो तो वो यहाँ पर आकर के वापस फिर इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। किस में डाल दिया जाएगा? नेफ्रिक फिल्ट्रेट यानी कि नेफ्रॉन में, क्योंकि एक बार यहाँ आ जाओगे तो देन यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द बॉडी, आपको एक स्किट कर देंगे हम लोग, बाहर निकाल देंगे, तो वो कम से कम इसमें आना तो चाहिए ना। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो सब कुछ क्लियर होते चला जा रहा है कि ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है। वापस यहाँ फिर से एक डायग्राम के जरिए देख सकते हो कि किस तरह से ब्लड, देखो ये एफरेंट इनिफरेंट किस तरह से आया, किस तरह से नेफ्रिक फिल्ट्रेट बन रहा, देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद ये चला आया पीसीटी के पास, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल में आकर के देखिए, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल में फिर से डायग्राम से जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दें। प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स क्या हो गए, दो नंबर प्रोसेस देखो, दो नंबर प्रोसेस में क्या लिख रहा है? रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि most of the chemicals like glucose, amino acids, water, sodium ion, potassium ion, that has to get inside this peritubular capillaries ना, इसके अंदर आ जाना चाहिए ना, नहीं तो वो फिर हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो वापस फिर इसमें चला गया, तो दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन में ये क्या बताना है कि ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में अभी भी कुछ केमिकल्स ऐसे हार्मफुल बच गए थे, जो बच के निकल गए, यहाँ नीचे नहीं उतर पाए किसी कारण से। तो ऐसे केमिकल्स लाइक अमोनिया को वापस फिर से ट्यूब में यानी कि नेफ्रॉन के ट्यूब में डाल दिया जाता है, सो दैट कि ये ब्लड को नुकसान नहीं पहुंचाए और ये शरीर से एक्सक्रीट हो जाए, नंबर 4 एक्सक्रीशन हो जाए, दैट्स ऑल। तो ये सारा डिटेल्स जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। बेसिक्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हमने सीख गया। फिर से ये डायग्राम देख लो कि किस तरह से ये प्रोसेस, ये क्या बता रहा है, दैट इज क्या बता रहा है? रीअब्जॉर्प्शन, है ना। यहाँ से वापस है रीअब्जॉर्प्शन, ये देखो ये डायग्राम क्या बताए, एरो वाइज स्टडी करो, ये बता रहा है दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये एरो बता रहा है रीअब्जॉर्प्शन, ये एरो बता रहा है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इन दिस वे अगर ये सारा कार्यक्रम अगर आपका नेफ्रॉन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका यूरिन फॉर्मेशन होगा, अल्टीमेटली यूरिन फॉर्मेशन होगा। It means that we have learned about the urine formation in this video, and we had seen about the 3 steps, major steps, that is ultrafiltration and selective reabsorption, and thereafter tubular secretion, and how the process is going on we have discussed in detail. So I hope that you have understood this topic, and whenever the exam in this question will come, whatever the way of asking question, whether the formation of urine or whether the functions of nephron, then the same answer you have to display there and write it with a complete diagram, whatever you know. If you are making a 1 or 2 diagram at least in every questions, it means that your answer will be regarded as the very perfect answer. So I hope you have understood well. In the next video we will learn about the plant excretion. This is very easy title, so in the next video the video will be very small. Thank you and have a nice day.